Assalamu alaikum dear students. This is Sadia Imran from the Language House. आज इस वीडियो में हम रीडिंग टास्क आइल्स का जो रीडिंग टास्क है 3 उसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है फ्रॉम टास्क 1 to 3 विल बी इंक्रीज्ड, यानी टास्क 1 से लेके 3 तक जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो आपकी इंक्रीज़ करती रहेगी। So let's start from this paragraph. We were studying about what is a port city. Port city के बारे में हम पढ़ रहे थे और as you know कि in a comprehension passage the initial paragraph is a introductory paragraph. Introductory paragraph के बाद उसकी जो main details थी वो वहाँ पे discuss हुई और उसके बाद हम next paragraph पे जाते हैं. Paragraph B, which is port cities become industrial, financial and service centers and political capitals because of their water connections and the urban connections which arise there and later draws to it railways, highways and air routes. यानी कि जो पोर्ट की सिटी की लाइफ है वो कनेक्टेड है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स चीप एक्सेस, द चीफ बेसिस ऑफ ऑल पोर्ट सिटीज़. Many of the world's biggest cities, for example, London, New York, Shanghai, Istanbul, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia, and San Francisco begin as ports. तो what technique is being followed here? यहाँ पे compare and contrast हो रहा है. आपको बता रहे हैं कि जो ports पहले दुनिया में जिन पे पोर्ट से ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी उन्होंने कितना इकोनॉमिकली डेवलप किया. एंड इन दिस पैराग्राफ द राइटर इज गिविंग यू एग्जांपल्स अबाउट दैम. But they have since grown disproportionately in other respects so that their port functions are no longer dominant. So initially ये ports ने business किया लेकिन फिर port life उनकी dominant नहीं रही. तो इसमें उन्होंने compare and contrast किया और आपके understanding check करने के लिए कि आपको ये technique कितनी अच्छी समझ आती है. There remain different kinds of places from non-port cities and their port functions account for their difference. So in this paragraph they have discussed and compare and contrast the port life and also the harbor life और example दी के different ports cities को कैसे benefit करते हैं. Port functions, in the next paragraph they are discussing port functions. More than anything else make a city cosmopolitan. A port city is open to the world in its races, culture and ideas as well as goods from a variety of places jostle, mix and enrich each other and the life of the city. यानी उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि पोर्ट लाइफ से आपकी सिटी के अंदर किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट रेसेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. द स्मेल ऑफ द सी and the harbor and the sound of boat whistles or the moving tides are symbols of their multiple links with the wide world. So here the writer is using descriptive language कि वो ये कह रहा है कि enrich each other कैसे. The smell of the sea एक अच्छा expression है and the harbor and the sound of the boat vessels, ये बहुत अच्छा expression यूज़ किया है. So this is an example of descriptive language. एंड उसमें उन्होंने बताया कि पोर्ट फंक्शन से किस तरह वहाँ की लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होती है. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ सी पोर्ट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म बाय द एडवेंट ऑफ पावर्ड वेसल्स whose size and draught have increased. Mainly formerly important ports have become economically and physically less accessible as a result. वाक़ई साथ साथ वो less accessible हो गए. Bypassed by most of the former enriching flow of exchange, they have become cultural and economic backwaters or have acquired the character of museum of the past. So वक्त के साथ साथ वो एक म्यूजियम की इम्पोर्टेंस उन्होंने गेन कर ली. Example of these are Charleston, Bristol, and there are many examples which are quoted here, and these countries have improved as a port and are very economically developed. In the next paragraph E, much domestic port trade has not been recorded. What evidence we have suggests that domestic trade was greater at all periods than external trade.
लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड हमेशा ये एविडेंस ने प्रूव किया है कि एक्सटर्नल ट्रेड से ज़्यादा होता है ट्रेड से. Shanghai, for example, did most of its trade with the Chinese port and inland cities. Kolkata traded mainly with other parts of the India and so on. So in this paragraph, the writer is giving examples. Most of any city's population is engaged in providing goods and services for the city itself. Trade outside the city in its basic function, but each basic worker requires food, housing, clothing and other such services. So हम इसमें उनकी डिटेल देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरत है. Estimates of the ratio of basis to service ranges from 1:4 to 1:8. तो इसकी रेशो को उन्होंने बताया है, which is very important information to understand. Next paragraph में no city can be simply a port but must be involved in a variety of other activities. उसके साथ साथ राइटर ने एक सिग्निफिकेंस दी कि सिर्फ पोर्ट बनने से आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेंगे, इनरिच नहीं करेंगे कल्चर में, लैंग्वेजेस में ऑल दैट, बल्कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी और वर्ड्स जो है वो इसमें थोड़ी वोकैबुलरीज डिफिकल्ट, आइडियाज आर मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू टेक्स्ट नंबर A and B ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट ऑफ IELTS एग्जाम. The port functions of the city draws to it raw material and distributes them in many other forms. Ports take advantage of the need for breaking up the bulk material where water and land transport meet and where loading and unloading costs can be minimized by refining raw material or turning them into finished goods. डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो पोर्ट और ट्रेड के साथ लिंक्ड हो सकती हैं वो आप कर सकते हैं. ऑल पोर्ट्स हैंडल, अनलोड, सॉर्ट, आउटर, प्रोसेस, रीपैक एंड रीशिप मोस्ट ऑफ व्हाट इज रिसीव्ड. तो सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और बहुत ज़्यादा बिजनेस इससे जनरेट होता है. इन द लास्ट पैराग्राफ द राइटर सेड सिटीज़ विच बिगिन एज पोर्ट्स retain the chief commercial and administrative center of the cities close to the waterfront. यानी जो सिटीज़ पोर्ट के तौर पर अपने आप को स्टार्ट करती हैं अपना बिजनेस, तो वो बहुत लॉन्ग वे पे जाती हैं. द सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क इज़ इन लोअर मैनहट्टन बिटवीन टू रिवर्स माउथ. द सिटी ऑफ लंडन इज़ ऑन द थेम्स, शंघाई अलॉन्ग द बन. दिस प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, यानी उनकी क्योंकि प्रॉक्सिमिटी थी, करीब कुर्बत थी वाटर के साथ, is also true of Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore. So all these commercial cities are close to the water. So इसलिए इसमें सारा बताना चाह रहा है राइटर कि even a casual visitor cannot mistake them as anything but port cities. इनको हम कहते हैं ये port cities हैं. So what are port cities? This is a port city जिसका टाइटल उन्होंने दिया है इस टेक्स्ट का, What is a port city? So इन दिस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हमें ये देखना चाहिए और स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि शुरू में आपको इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन बॉडी देंगे और फिर एंड में कंक्लूजन देंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज द आंसर लाइक दैट. इसके साथ जो क्वेश्चन रिलेटेड है 31 to 34, लुक एट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर 31 and 34 एंड सम पार्ट्स साइटेड मेंशन इन द रीडिंग पैसेज. इनको मैच करना है. मैच द पेयर ऑफ सिटीज़ A and H लिस्टेड. इसमें आपको मैचिंग की एक्टिविटी दी हुई है, वो आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चेक करने के लिए कि आपको कितनी समझ आई है, कौन कौन सी सिटीज़ में कौन कौन सी तरह का बिजनेस और पोर्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. क्वेश्चन नंबर 35 to 40 इज टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. ये आपको येस, नो और नॉट गिवन, ये तीन तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपने पढ़ के यू हैव टू फाइंड आउट कि ये वाली ऑप्शन येस है, नो है और नॉट गिवन इन द एक्टिविटी. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर IELTS क्लासेस, फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एट द लैंग्वेज हाउस. इन पर्सन क्लासेस हम पैरागॉन सिटी में इस वक्त मौजूद है, वहाँ पे हम कर रहे हैं. और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारी वेबसाइट www.languagehouse.com.pk पे जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करेगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. और आप इस मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और कमेंट कर दें, लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा ले सकें. और आप हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हम आपको हेल्प करेंगे इन IELTS प्रिपरेशन एंड स्पोकन टेस्ट. थैंक यू सो वेरी मच.